Okay, good morning, everyone. Am I audible? Ma'am. Morning, Yes. ma'am. Good morning. How are you? Okay, fine. So today we will be going to start the subject operating systems. Okay, and we will be going through various kind of questions that will be asked in your operating system subject. So we have finished database. We have gone through the various topics into database, and in operating system there are some of the topics that could be asked in your personal interviews. So what are those particular topics? So jumping upon that particular topic, it is better to have a rough idea about what we know about operating system. Fine. So first of all, let's start with the definition. So, what is an operating system? Anyone? No idea? You don't know what is an operating system? Okay, so we can say It's a software that's it. It's a software. which manages and distributes all the hardware and software's resources to the computer. Which manages the Which resources. manages and gives and organizes all the resources in the computer. Very well. Anyone else who wants to add some of the basic points that is being skipped here? I'm a computer program that organizes a number of the program at the same time. Mm-hmm. जैसे हम मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं और एक साथ में बहुत सारे काम कर रहे हैं ऐसा. You said number of programs. She said hardware and softwares. Resources basically. मैम resources को manage करने वाला software. Management of resources. Very well. Anyone else? Act as an interface between computer hardware component and the user. Very well. Interface. Yes, So, sir. Definitely. Because the main motive of having an operating system is we cannot connect with the machine. We are not able to connect with the machine. So if I am saying something, that should be as it is, send it over to the machine, and the machine should be able to understand what I want to say. If I am writing x is equals to a plus b, then that particular language should be passed on to the machine, so that machine should exactly understand that x is equals to a plus b is written over here. So why we need this type of a software is it will act as an interface between the hardware and the end user for the actions that to be performed. So the first and the basic definition you can say about operating system is it will act as a connecting device. It will act as an interface between the hardware and the end user. Then you can say that definitely operating system is kind of a software which is managing your all the resources, your all the hardware and the software resources, which are definitely connected with the machine or in the machine. And yes, number of programs we can, these are basically the applications. Okay, so if someone is asking about what are the various applications of operating system, then you can say these points. But when you are defining an operating system, then you will definitely define the word interface, because this is the basic word that is why we invented operating system. Okay, so yes, you are okay. This is the operating system. So we can say the operating system is a software program that facilitates the hardware just to communicate and operate the various information and operations that wants to be done by the machine, and the instructions that is given by the users. Okay, now there is a term in operating system
applications, executions, functions. So what are the major functions of operating system? Number one, I will say this is like, memory management. What else? Anyone? Resource utilization, resource handling. हम और थर्ड लिख सकते हैं हम execute and provide service for software application. सर्विस प्रोवाइड, और आप कहना चाहते हैं दैट वुड बी योर प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट? Yes, ma'am. Next, what next? You will be able to tell at least 5 functions. IO management, isn't so? Input output management. Next, Safety and security. safety and security. Yes. Other than that, there are many options: file management, then device management, resource allocation. What happens to you guys? Operating system, you must be having all these ideas. सबसे बड़ा तो इसमें resource allocation है. So these are some of the basic functions of an operating system. Memory management हो गया आपका, resource handling, process management, input output management, security management, file management, resource allocation, device management. So these are some of the functionalities. Okay, so what does it means? That these functions can be performed by your operating system. If you are in a process to build an operating system, if you are building an operating system, then you have to first and foremost see what kind of operations will be performed by your software. So these 6 to 7 to 8 operations should be there. Otherwise, you cannot say that that particular software is an operating system. Okay. So there is a term in your operating system is real time. So what is real time systems? Tell me. We are doing the revision. Real time. No idea? What do you mean by real time? We are connected on a real time. Yes, anyone wants to say something? हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टाइम लिमिटेशन होता है और उस लिमिटेशन के अंदर ही उसे एग्जीक्यूट करना होता है. अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो डेडलाइन की वजह से वो प्रोग्राम जो और या कुछ भी एग्जीक्यूट डेडलाइन. और मैम रियल टाइम में वो टाइम बहुत ही कम होता है, तो वो हमको पता भी नहीं चलता, एंड वो लगता है कि हमको जैसे हो रहा है, मतलब जैसे हमने इनपुट डाला वैसे ही हो गया. डेफिनेटली रियल टाइम के अंदर just remember one word: rigid time. So whatever be the requirements are there, that has to be done under some fixed time constraints. Your time is rigid. You will be having interval of time. Yes, you will have a starting time and an ending time for each and every process. Okay, so there is a well defined and fixed time constraint. इसमें आप बिल्कुल भी कोई लूज एंड नहीं रख सकते. रिजिड है. इफ यू हैव टू स्टार्ट योर क्लास एट 11, इट हैज टू बी स्टार्ट एट 11. देयर इज नो 11.01. नो, this is the power of real time system. Now what happens is you do have 2 types of real time, 2 or maybe 3 types of real time.
but 2 is most important, that is what? Hard time, hard real time, and soft real time. Now tell me, what is this? So hard time में क्या हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, if you have to start at 11, you cannot start at 11.01. That is very much rigid. The deadline is very much fixed. You will fail if you are unable to perform the function within the deadline. This is the hard time. This like aircraft control हो गया या कोई anti lock brake हो गए, ठीक है? These are the critical systems that needs to be performed on a particularly specific time that is being defined. Otherwise system fail हो जाएगा. आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, आप कुछ इस तरह का क्रिटिकल वर्क कर रहे हो, उसमें हार्ड टाइम आपको चाहिए, ठीक है? नाउ व्हाट इज सॉफ्ट टाइम? सॉफ्ट टाइम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए रियल टाइम. यहाँ पे भी क्रिटिकल टाइमलाइन होती है, बट आप इसमें थोड़ा सा एक्सक्यूज ले सकते हैं. लाइक रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए टिकट बुक करा रहे हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल डू दिस इन कमिंग डेज. सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको एक विंडो मिलता है, टिकट बुक कराते हो तो टाइमर चलता है कि ठीक है इतने टाइम में हमारा जो है ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है और वो सक्सेसफुल हो जाएगा. अगर वो उतने टाइम में ट्रांजैक्शन अकर नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा. अब इसमें सिनेरियो क्या है? मान लीजिए यूजर एंड से जो मनी था वो आपका डिडक्ट हो गया, चला गया आपके एंड से, बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बैंक में नहीं पहुंचा जो आपका वेंडर है उसका, ठीक है? तो क्या होगा? रोल बैक हो जाएगा यहाँ से, बट दैट इज अंडर अ सॉफ्ट टाइम. आप अगर ये एग्जांपल्स लेंगे तो वो सॉफ्ट टाइम के एग्जांपल्स हैं, बट दीज आर द पार्ट ऑफ द रियल टाइम सिस्टम्स, डू रिमेंबर. तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास में थोड़ा सा जो एक्सक्यूज है that could be taken care of, but these are also the critical timeline. The systems would definitely have these critical timelines, but आप उसमें थोड़ा सा उतना rigid नहीं हो आप टाइम के लिए, उस फ्रेम ऑफ टाइम को आप आगे पीछे कर सकते हैं. सो ये हमारा क्या हो गया? रियल टाइम हो गया, ठीक? अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है, जो कि हमने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है, एडवांटेजेस देखी हैं बेसिकली. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो सबसे पहला जो मुझे एडवांटेज मिलता है दैट इज, Ma'am, हाँ जी, ma'am, before this, I had a doubt, ma'am. Can I ask you? Ma'am, can we give for example for hard real time, like rocket launching also? It yes, can't take more than 0.1 second also late. yes. Could it be considered? Yes, I told you earlier that in hard time system, the example would be like your rocket launchers and then your subcritical task that needs to be performed in a very particular instant of time. So Okay. हाँ, वहाँ पे आप उन्हें नहीं कर सकते, आप वहाँ पे डिले का पार्ट नहीं बन सकते, otherwise that will be a software failures. So when I talk about the advantages, the very first advantage that comes to my mind is multi-programming. So who else is agreeing with me that this is the basic advantage of operating system? Multi-programming. So multi-programming is, a kind of a feature that allows a process where, multiple programs can execute over one CPU. Fine. So what happens is that it doesn't mean that at the same instant of time you are running multiple processes if you are having the same or a single CPU. These are your processes. So what is the logic behind this multi-programming? So there is a difference between a multi-programming and normal systems.
What are those? मैम मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है How? मैम, क्योंकि सारी प्रोग्राम्स रन कर रही होती हैं तो फिर सीपीयू स्विच करके मतलब वो खाली नहीं बैठता, काम करता ही रहता है। खाली ये नहीं सम बैठता। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है इसमें। This is like sharing the processor. Okay, you are sharing your processor, you are sharing your CPU with each and every program that is lined up in your program control. So what happens is when two or more programs reside in a memory at the same time, then it will be referred as your multi-programming. Right? And multi-programming is like sharing the processor between all those programs that are residing in your memory. So it is your memory, and your memory is having a movie, and it is also running a music application, movie application. It is running a Word application. It is running a some other program, maybe backend programs. So what happens is multi-programming. In multi-programming, your CPU is being shared with all these applications. So you are sharing the processor. So basically, multi-programming increases the CPU utilization, very well said, by organizing the jobs. You are organizing all these jobs so that the CPU always has to execute only one job at a time. Okay, so what you needs to be done here, what your program counter will be going to do, that it will organize the job, that is job 1, job 2, job 3, job 4 and so on. So ये आपका जॉब जो है पहले इनिशियलाइज किया जाएगा, जॉब आप बनाना शुरू करेंगे और फिर इसको सीपीयू एलोकेट होगा। अब ये जॉब कैसे बनाते हैं, that is another part of the story. So basically you must be having the idea of multi-programming, the first advantage. Now the second advantage. Multitasking. इसका क्या मतलब है? Multitasking is when multiple jobs, there are also multiple jobs, are executed or operated by your CPU only by switching. There is a switching technique that is being done by your CPU, and CPU is going to switch to each and other job. जितनी जॉब आप उसे असाइन करेंगे इनके बीच में स्विचिंग चलती रहेगी, जॉब्स बाय जॉब्स. ठीक है? So user will be going to give the instructions to the operating system that which program has to be performed earlier, which program has to be performed later on. This is, we will be discussing all these. Priority scheduling, you must be having the idea of scheduling processes, but we will definitely recall them. So user will give the instructions to your operating system that which particular program has to be performed based upon the particular instructions, and the CPU will jump upon that particular program into different timings. Okay. So multitasking is also known as what? Anyone know the other name of multitasking? Time sharing. ठीक है? Do remember कि multitasking को हम time sharing systems भी कहते हैं. Fine. तो got the idea? Multitasking क्या हो रहा है? Okay. नेक्स्ट इसके अंदर अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की. हम पहले कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, हम उन्हें रिवाइज कर रहे हैं सो दैट कि हम एकदम से जंप ना करें. वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी, मैम एक बार मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग डिफरेंस बता दीजिए. क्या बोल रहे हो? दोबारा से बोलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है.
मैम मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का डिफरेंस। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, अच्छा चलिए कोई बताना चाहेगा, कोई पॉइंट्स इस पे, क्या डिफरेंस दिखा आपको इसके अंदर? मैम मल्टी प्रोग्रामिंग में सारे प्रोग्राम हर समय रन करते हैं और उसमें मल्टीटास्किंग में स्विचिंग होती है। स्विचिंग होती है, चलो एक डिफरेंस तो अभी जो आपने मेरी बातों से पकड़ा, वेरी गुड। यहाँ पे लिखते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। एक पाव एक पाव कितने का? एक मिनट, लेट 40 का। और कौन सा टुकड़ा लंबा? बासमती। कुनाल, ओके। ठीक है, it's done. So I was telling you the difference between the multi-programming and multitasking. See, the number one objective, the first objective is for multi-programming is to utilize the CPU. ठीक है, सबसे पहला। जबकि मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है कि you have to utilize the time. Do remember. यहाँ पे आप CPU यूटिलाइजेशन देख रहे हो, यहाँ पे आप टाइम यूटिलाइजेशन देख रहे हो। जो आपका रेस्पॉन्स टाइम है दैट शुड बी मिनिमम। आपको टाइम यूटिलाइज करना है बिटवीन द प्रोसेसेस, ठीक। दूसरा, जो भी आपके मल्टी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, वन और मोर प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इनटू योर मेन मेमोरी, and you must be knowing what is main memory. Okay, I don't need to tell each and everyone what is main memory, secondary memory. So यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में आपके सारे प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में होते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू काइंड ऑफ टास्क्स, थ्रेड्स एंड सो ऑन। ठीक, आप मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर रहे हो बट इन फॉर्म ऑफ टास्क, इन फॉर्म ऑफ थ्रेड्स। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड कर रहे हो और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, स्विचिंग यूज कर रहे हो मल्टीटास्किंग में। तो स्विच आप जब कर रहे हो तो आप थ्रेड बाय थ्रेड आपने बना रखे हैं। वी विल बी हैविंग दोज आइडियाज ऑल्सो कि कोई मेरा प्रोग्राम होता है P1 P2, उसके मैंने थ्रेड्स बनाए होते हैं जो मेरे कनेक्टेड होते हैं CPU से, एंड CPU विल बी जंपिंग अपॉन ईच एंड एवरी वन डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी उसकी प्रायोरिटी है। ठीक, तीसरा और जो मुझे लगता है कि बेसिक डिफरेंस है वो है टाइम का, कि जो मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग है दैट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट, बिकॉज इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, हम पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म करते हैं। We finish the program, we execute the program properly, fully. While इसमें क्या है, इसमें आप less time लेते हो मल्टीटास्किंग में। Why less time? Because आप इसमें जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोग्राम at one instant of time पे खत्म कर दो। इसमें क्या होगा कि आप जो है थ्रेड बाय थ्रेड या टास्क बाय टास्क, प्रोसेस बाय प्रोसेस एग्जीक्यूट करते जाओगे और वो स्विच होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि अब टाइम अलॉट हुआ है, विंडो मिली है प्रोसेस P1 को तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो सकता है वो 0 to 2 सेकेंड्स के लिए हो, 2 to 4 वो किसी और प्रोसेस को मिल जाए। तो यहाँ कम टाइम लगता है मेमोरी CPU एलोकेशन में, यहाँ ज्यादा टाइम लगता है CPU एलोकेशन में। सो ये बेसिक डिफरेंस है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में। फाइन, शैल वी प्रोसीड? मैम यस मैम, एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है ना टाइम? किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग में? हाँ। इसमें क्या होता है, आप जैसे CPU जो है वो किसी एक जॉब को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है,
वो परफॉर्म पूरा तब तक अगर हो जाता है, जो भी एलोकेशन टाइम है, जैसे मान लीजिए P1 को है 2 सेकेंड्स के लिए चाहिए, P2 को 4 के लिए चाहिए, P3 को 6 सेकेंड्स के लिए चाहिए। अब इसमें एल्गोरिदम हम देखेंगे, मान लीजिए अगर हम कौन सी एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो भी डिपेंड कर रहा है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में कोशिश की जाती है कि आप जो भी ले रहे हो पर्टिकुलर प्रोसेस, आप उसे एक बार में खत्म कर दो। तो मैं अगर इसको 2 सेकेंड अलॉट कर रही हूँ तो ये फिनिश हो जाना चाहिए। अगर ये फिनिश नहीं हुआ तो दूसरे को मिल जाएगा CPU और ये वेट करेगा फिर नेक्स्ट के लिए। बट मल्टी प्रोग्रामिंग यही है, इसका फोकस इस पे होता है कि आप CPU को कैसे यूटिलाइज करो। CPU शुड नॉट स्टे आइडल। CPU के पास हर टाइम कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। सो इट रन्स मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम बट ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। तो यहाँ पे सिंगल प्रोसेसर होता है। मल्टीटास्किंग के अंदर जो है, आप एक से ज्यादा प्रोसेसर आपके पास में हो सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रोसेसर ले रहे हो तब भी उसमें टाइम शेड्यूलिंग जरूर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे अगर दूसरे को मुझे मिला है तो ये 2 यहाँ से 6 तक चलेगा, इसको 4 सेकेंड अलॉट हो जाएंगे सेकेंड वाले को। लेकिन मल्टीटास्किंग में ही अगर मान लीजिए मैंने रिजिड कर दिया कि 2 सेकेंड ही मुझे हर एक प्रोसेस को देना है, तो दिस प्रोसेस वुड नॉट बी कंप्लीटेड इन 2 सेकेंड्स। तो ये आपका 2 to 4 ही जाएगा। सो ये डिफरेंस है बस मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में। ओके अब इसके अंदर ये भी है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपका जो प्रोग्राम्स हैं मेमोरी के अंदर होते हैं। तो CPU सेलेक्ट करता है जॉब को और स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन को। वो भी डिपेंड कर रहा है कि रिक्वायरमेंट कैसी है प्रोसेस की। फाइन, कोशिश रहती है कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर आपका कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो फिर क्या होगा, हम इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे और इन बिटवीन जब तक ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, रिसोर्स एलोकेट होता है, तब तक CPU जो है वो कोई भी सेकंड जॉब जो उसे मिलेगा वो उसे एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, स्लो प्रोसेसिंग है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू मल्टीटास्किंग बस। देन नेक्स्ट virtual memory. Yes, I was asking about virtual memory. Everyone is using this. What is virtual memory? Look, what happens in the virtual memory? जब हम बात कर रहे हैं स्टोरेज एलोकेशंस की, मेमोरीज की, हमारे पास में 2 मेमोरीज हैं। वी आर हैविंग आवर मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। तो हमारे पास एक प्राइमरी हो गई, एक सेकेंडरी या मेन मेमोरी हो गई। सो व्हाट नेमिंग कन्वेंशन यू वांट टू प्रेफर। सो इसमें क्या है, वर्चुअल मेमोरी के अंदर आप ये समझ लीजिए जो मेमोरी एलोकेट हो रही है, ठीक, जैसे इसका एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जैसे आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, आई थिंक सबके पास विंडोज होगा। आप विंडोज को लेके चलिए कि विंडोज इज योर काइंड ऑफ ए वर्चुअल मेमोरी। ठीक, तो वर्चुअल मेमोरी का एक बेसिक फंडा क्या हो गया कि यू कैन लोड द प्रोग्राम्स लार्जर देन योर मेन मेमोरी। मतलब अगर मेरे पास में मान लीजिए 2 GB का मेन मेमोरी का स्पेस है, दिस इज माय मेन मेमोरी, और मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन है जो मेरी यूज कर रही है, मान लीजिए 2.5 GB। अब क्या होगा, क्या मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन कर पाऊंगी अपने सिस्टम में?
किसी ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि आपके पास में आपका जो रैम है, रैम का साइज जो है वो इतना हो 2 GB अराउंड या जो भी आपका साइज है, और आपके एप्लीकेशन का साइज रैम से बिगर है, तो क्या वो ओपन हो सकती है? जस्ट मैं ओपन होने की बात कर रही हूँ। यस मैम। बिल्कुल ओपन हो जाएगी। वो ओपन कैसे हो रही है? आपके पास तो 2 GB का स्पेस था, आपकी एप्लीकेशन यूज कर रही है 2.5 GB जस्ट टू ओपन, तो कैसे आप उसे यूज कर पा रहे हो? कैसे कर पा रहे हैं? जो आपकी हार्ड डिस्क है, नाउ दिस इज योर मेन मेमोरी, फाइन। अब मेरी हार्ड डिस्क आती है, हार्ड डिस्क क्या करेगी? डिस्क स्टोरेज को मतलब डिस्क स्टोरेज में डाल देगा, मतलब मेमोरी। बिल्कुल, कुछ सेक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क वो क्या होगा, वो आपका ऐड हो जाएगा रैम में। ये जो ऐड हो रहा है, एमुलेट हो रहा है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो? इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन कर पा रहे हो। ये ओपन होगा, रन करेगा, टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा? क्योंकि जो सेक्शन मेरा लोड हुआ है हार्ड डिस्क में, वो सेक्शन पहले कहाँ आ रहा है? मेन मेमोरी में आ रहा है, देन उसके बाद कैश में दिख रहा है, और फिर आपको डिस्प्ले करवा रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है फ्रॉम स्विचिंग, द स्विचिंग टाइम बिटवीन योर हार्ड डिस्क टू द रैम, दैट इज बीइंग द पार्ट ऑफ द डिले प्रोसेस, कि क्यों डिले हो रहा है। सो वर्चुअल मेमोरी हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वर्चुअल मेमोरी जो मैंने क्रिएट करी है, 0.5 GB, 0.5 GB की जो मैंने क्रिएट करी, दैट इज द वर्चुअल मेमोरी। सो दो पर्पस हैं वर्चुअल मेमोरी जो मुझे सर्व कर रही है। द फर्स्ट वन इज इट अलाउज अस टू एक्सटेंड द यूज ऑफ फिजिकल मेमोरी। मैं अब फिजिकल मेमोरी को एक्सटेंड करके यूज कर पा रही हूँ, पहला। और वो हेल्प किससे हो रही है? मुझे डिस्क से हेल्प हो रही है। दूसरा फायदा इसमें क्या होता है? मेमोरी प्रोटेक्शन होता है। जो भी आपका वर्चुअल एड्रेस बनेगा, अब इस एरिया में भी तो वर्चुअल एड्रेसेस बनेंगे आपके, मेन मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं, आपको पता है। वर्चुअल मेमोरी बन रही है जो कि हार्ड डिस्क से मुझे मिल रही है, उसका भी कोई एड्रेस होगा। सो दैट वर्चुअल एड्रेस विल बी converted into your physical address, that is main memory address। तो यहाँ मेमोरी प्रोटेक्शन मुझे मिल जाता है कि ये वर्चुअल एड्रेस अपने आप कन्वर्ट हो रहा है फिजिकल एड्रेस में। तो दो पॉइंट हमारे मेजर हैं कि मैं जो है किसी प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम को इफ इट इज हैविंग मोर space than your main memory, then it could be able to open up in your system। आप उसे ऑन कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, बट यू कैन नॉट गारंटी कि वो उतनी स्पीड से एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस में टाइम लगेगा। क्योंकि जब आप सीपीयू एलोकेट करोगे तो सीपीयू एलोकेशन में इसका एड्रेस अलग रहेगा मेन मेमोरी का, वर्चुअल एड्रेस कन्वर्ट होगा फिजिकल में, पहले वर्चुअल एड्रेस क्रिएट होगा, फिर फिजिकल में कन्वर्ट होगा, तो वहां टाइम लगेगा, जिसकी वजह से सीपीयू एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो डिले दिखेगा आपको, तो ओवरऑल थ्रूपुट कम हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हैवी एप्लीकेशंस अगर आप किसी जैसे मान लीजिए हम चला लेते हैं कि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 GB की, और हम 1 GB में वो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो हमें वो डिले दिखता है। ऐसा नहीं है वो ओपन नहीं होता, ओपन होती है, बट इट विल टेक टाइम। सो दैट इज योर वर्चुअल मेमोरी। ओके, ये क्वेश्चन आता है, और क्योंकि हम रियल टाइम में, मतलब देखा जाए तो वी आर यूजिंग द वर्चुअल मेमोरी आजकल भी, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए। नाउ मैम, हाँ, मैम उसकी भी एक लिमिट होगी ना, पर जो हम हार्ड डिस्क पे मतलब उसकी कैपेसिटी अगर हम उससे ज्यादा भी ले ले तब तो नहीं हो पाएगा ना? आप वर्चुअल मेमोरी कितना लिमिट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका? हाँ मैम, हाँ मैम। वर्चुअल मेमोरी जो है, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 GB की मैं बात कर रही थी अभी, कि 2 GB का आपका रैम है, तो वर्चुअल मेमोरी आप ज्यादा से ज्यादा इसे एक्सटेंड करके 6 GB तक बना सकते हैं, मतलब और इसमें 4 GB ऐड हो सकता है।
बट वो बहुत ही स्लोअर प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये मतलब ये समझ लीजिए एटलीस्ट 1.5 टाइम्स जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी अपने रैम को विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी। 1.5 आप मान के चलिए अराउंड अप्रोक्सीमेशन, इतना टाइम्स आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये मिनिमम है, मिनिमम 1.5। ओके मैम। हाँ, मैक्सिमम आपका 3 टाइम्स तक, 3 से ज्यादा कभी नहीं। 3 भी बहुत रेयर टू रेयर है, बट हमने लिमिट ये लगा रखी है कि 1.5 to 3 टाइम्स आप रैम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड आते हैं मेरे पास में कुछ इस तरह के जो हमारे यूज होंगे अब आगे। सो फर्स्ट वन इज, लेट मी राइट, what is this? Throughput, turnaround time, waiting time, and the fourth one is response time. Tell me, what is throughput? The amount of work complete at a unit of time. बिल्कुल ठीक। Ma'am, Amount, number of processes executed in 1 unit of. yes, amount of work, number of processes, this is all in the sayings। आप किस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। Throughput is what? That how many processes are executed in one instant of time. This is your throughput. So इसका range कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? That in, you know, आप इसे कह सकते हैं कि थ्रूपुट का रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है मेरा, कोई बताएगा? मैम 10 सेकेंड से 1 आवर करीब। 10 सेकेंड से 1 आवर के अराउंड, यस, कह सकते हैं 10 सेकेंड से 1 आवर। मिली सेकेंड्स में भी वैसे थ्रूपुट आता है, बट बहुत रेयर केस है कि आपका उसमें जाएगा। वर्चुअल मेमोरी में पेजिंग क्या होता है? वी विल कम टू पेजिंग, डोंट वरी। हम पेजिंग पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि पेजिंग टेक्निक्स क्या हैं, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हैं पेजिंग के अंदर। सो थ्रूपुट क्लियर है, क्योंकि ये हमें अभी एल्गोरिदम, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स देखनी है तो उसमें ये वर्ड हमारे यूज होते हैं। थ्रूपुट, that is number of processes that has been completed in a one instant of time, that is 1 unit of time, ठीक। अब बात करते हैं what is your turn around time। जो टाइम किसी प्रोसेस करने के लिए, दोबारा बोलो, आपकी आवाज ग्लिच हो रहा थोड़ा सा। हाँ, अमाउंट टाइम लेते हैं किसी प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। टर्न अराउंड टाइम क्या है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ठीक है। ओके, आई वाज डिस्कनेक्टेड। Ma'am, can you please explain again turnaround time? हाँ, 1 मिनट बस। I was explaining turnaround time. So what is turnaround time? That you have started the process, your process ends. So the time elapsed between this, that is starting of your process and the completion of your process. तो वो टाइम क्या होगा? दैट इज योर टर्न अराउंड टाइम। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए मेरा प्रोसेस P1 है, तो 0 से लेके 2 तक ये चला। सो 0 से लेके 2 तक का मतलब है इसमें बीच में कितने टाइम उसे लगा? दैट इज 2 सेकेंड्स। इफ दिस इज इन सेकेंड्स, देन 2 सेकेंड्स। तो दिस इज द टर्न अराउंड टाइम, ठीक।
Now, what is the response time? मैम किसी भी प्रोसेस को जो रिजल्ट देने में कितना टाइम लेता है? बिल्कुल. Response time is the time that is being spent, that is being delivered by your CPU when you are in the ready state. एक होती है इसके अंदर ready state. तो ready state से आप कहाँ पहुंच गए? जब आपको CPU allocate हो गया, that I am ready for the execution, और जो first time मुझे allocate हुआ, that is my response time. जैसे अगर मान लीजिए P1, P2, P3 processes हैं, these all three processes are in ready state. और सबसे पहले मेमोरी CPU allocate हो रहा है P2 को, इसे allocate हुआ 2 seconds पे, तो इसके लिए response time क्या हो गया? 2. इसे allocate हुआ 4 पे, तो इसके लिए response time क्या हो गया? 4. So this is the response time that at the very first stage the CPU has been allocated after your process is in ready state. तो वो कौन से time पे आपको मिला? That is your response time. Now what is waiting time here? मैम अपने बारी आने के लिए मैम रेडी स्टेट से पहले जो टाइम लगता है उसको. रेडी स्टेट से पहले मैम रेडी क्यू, मैम जो क्यू में होता है ना, उससे जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक जो वेट कर रहा होता है. यस, तो वेटिंग टाइम क्या हो गया? द CPU हैज बीन एलोकेटेड एट इंस्टेंट ऑफ 2 seconds, बट इसे एलोकेट हुआ 4 पे. रेस्पॉन्स टाइम इसके लिए 4 है, बट वेटिंग टाइम इसके लिए क्या हो गया? 6, क्योंकि 2 पे एलोकेट हुआ. ठीक है, तो हाउ मच टाइम योर प्रोसेस इन स्पेंड इन द रेडी क्यू एंड वेटिंग फॉर देयर टर्न, दैट इज नोन एज योर वेटिंग टाइम. कि वो रेडी क्यू में कितनी देर वेट कर रहा है और उसको कब एलोकेट हो रहा है CPU, दैट इज द वेटिंग टाइम. तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है. वेरी गुड, चलो अच्छी बात है. ये आपको सारी पॉइंट्स पता हैं जो आपको जरूरी हैं जानने. ओके, अब इसके अंदर उन एल्गोरिदम से भी पहले एक बड़ा सा वर्ड, व्हाट इज दिस? What is deadlock? Tell me. करते हैं तो फिर वो लूप में अंदर घूमते ही रह जाता है और फिर वो उससे निकल नहीं पाता, वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो डेडलॉक में जाता है. मैम रिसोर्सेज को लेके होता है ये, जब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती. ठीक है, वी कैन गेट दिस. रिसोर्स की बात की जा रही है यहाँ पे. मान लीजिए दिस इज रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2. अब क्या होगा? टेल मी, व्हाट शुड बी द डायग्राम फॉर द डेडलॉक? रिसोर्स 1. मैम अगर रिसोर्स 1 को मतलब प्रोसेस वो कर रहा है, असाइंड है, yes. और उसको अब उसी टाइम पे अगर रिसोर्स 2 भी चाहिए, बट जो रिसोर्स 2 है उसके पास रिसोर्स 2 है और उसे उस टाइम पे रिसोर्स 1 चाहिए, तो डेडलॉक हो जाएगा. डेफिनेटली. तो ये मेरा डायग्राम आई थिंक वही है जो आप कह रहे हैं कि प्रोसेस 2 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 1, बट रिसोर्स 1 इज बीइंग अलॉटेड टू प्रोसेस 2. Now, what about the resource 2? Process 1 wants resource 2, but resource 2 is being allotted to process 2. तो यहाँ पे ये situation क्या है? This is the situation of deadlock. So what happens is in deadlock, when 2 or more processes are wanting each another to release a resource indefinitely, then that condition, that process in a nature would be in a deadlock situation.
कि वो वेट ही कर रहे हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए, क्योंकि कोई रिलीज नहीं कर रहा रिसोर्सेस को। ठीक, वेटिंग टाइम यहाँ चलता रहेगा, वेटिंग टाइम आपका इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि आप इसको डेडलॉक को प्रिवेंट या अवॉइड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने 2 वर्ड बोले, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, इसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले डेडलॉक। तो डेडलॉक समझ में आ गया है, द प्रोसेसेस दैट गेट ब्लॉक्ड बिकॉज each process is holding some other resources and they are waiting for the other resources, so which is held by your another process, that is the deadlock. So deadlock कब हमारा अकर होता है? when there is multi processing, जब मल्टी प्रोसेसिंग हो रही हो, टाइम शेयरिंग हो रहा हो, जिसकी अभी हमने बात करी, तभी हमारे डेडलॉक की सिचुएशन अकर होगी। ठीक, तो हमें पता चल गया कि हम डेडलॉक क्या है, कैसे हो रहा है। अब डेडलॉक के अंदर हमारे क्या आती हैं? 4 कंडीशंस आती हैं। व्हाट आर दोज कंडीशंस? सबसे पहला, तुम लोगों को ये याद होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, थर्ड क्या था? नो प्रीएम्पशन, फोर्थ सर्कुलर वेट। इन्हें बिल्कुल याद कर लो, दिस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ओएस में वेदर द इंटरव्यूअर इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ये डेडलॉक सबको पता है, व्हाट इज डेडलॉक, और ये 4 कंडीशंस भी सबको पता होती हैं। और अगर नहीं पता, सो दिस इज अ वेरी शेमफुल कि आपको डेडलॉक की कंडीशंस नहीं पता, क्योंकि इन 4 कंडीशंस पे ही, किसने दी थी ये कंडीशंस? वैसे कॉफमैन ने दी थी, ध्यान रखना। इस 4 कंडीशंस की वजह से ही अगर ये ट्रू है, these conditions are being satisfied, then only your deadlock can occur. Otherwise deadlock होगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है कि हम अवॉइडेंस और प्रिवेंशन की तरफ जाएं। So we have to see that these 4 conditions should not occur at any cost. तो ये 4 conditions हैं आपके डेडलॉक की। So what is mutual exclusion? क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में? मैम जब 2 पीपल एक प्लेस पे चलते हैं, एक होल्ड करते और एक चलने लगता है। यस, बिल्कुल। जब मैम कि हमारी जो रिसोर्सेज है वो शेयरेबल नहीं है। बिल्कुल, जब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन शेयरेबल मोड में है, बिल्कुल ठीक बात है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में एक ही वर्ड आता है, दैट इज नॉन शेयरेबल। सबसे पहला पॉइंट, क्या कह रहा है ये कि इफ एट लीस्ट 1 or more resources are in non-shareable mode, then the resources should be in mutual exclusion. अगर नॉन शेयरेबल मोड में है एक या एक से ज्यादा रिसोर्स, तो वो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन बना देगा। ठीक है, नॉन शेयरेबल का मतलब तो सबको क्लियर हो रहा होगा, that particular resource cannot be used by more than 1 process at a time. ठीक है, दूसरा ये तो हो गया म्यूचुअल। देन आता है आपका होल्ड एंड वेट। व्हाट इज होल्ड एंड वेट? द प्रोसेसेस व्हिच आर ऑलरेडी होल्डिंग। मैम अगर कोई प्रोसेस होल्ड कर रहा और एक है को प्रोसेस करेगा और वेट करेगा दूसरे के लिए। बिल्कुल, दोनों ने ठीक बोला। जो प्रोसेस है वो एटलीस्ट आपका एक रिसोर्स होल्ड कर रहा है और नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, तब आपका वो होल्ड एंड वेट हो गया, क्योंकि ये यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है और इसे इसने होल्ड करके रखा हुआ है।
तो ये वेटिंग टाइम वी डोंट नो ये रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट होगी, बट ये होल्डिंग टाइम उतना ही बढ़ता चला जाएगा. सो दिस इज द होल्ड एंड वेट. थर्ड, नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन कहता है कोई भी रिसोर्स अलाउ नहीं करता. हाँ, आप उसे फोर्सफुली कभी भी रिलीज नहीं करोगे. जो भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को होल्ड किए हुए है वो उसे खुद रिलीज करेगा. ओनली द प्रोसेस होल्डिंग द रिसोर्स कैन रिलीज इट. ओके, रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिलीज्ड बाय फोर्स. मैम मैम होल्ड एंड वेट दो प्रोसेस के रिगार्डिंग हो सकता है, ये एक प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. होल्ड एंड वेट दो प्रोसेस के रिगार्डिंग मतलब कंडीशन बताओ मुझे, यहाँ पे मैं बना देती हूँ उसे. मैम जैसे एक रिसोर्स है तो एक P1 ने होल्ड कर रखा है, दूसरा वेट P2 वेट कर रहा है उसके लिए, तो वो होल्ड एंड वेट में आएगा. P2 is waiting, P1 is holding. ये बच्चे मैं कह तो रही हूँ, हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डेडलॉक के कंडीशंस की. होल्ड एंड वेट में हम आपको ये बता रहे हैं कि P1 अगर होल्ड कर रहा है और P1 कहीं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तो ये कभी ना कभी प्रोसेस कंप्लीट हो ही जाएगा. ये होल्ड एंड वेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि P2 is waiting for the resource and this resource is being allocated to P1, but P1 is not requesting any other resource. P1 is executing its process. It is holding R1 only. मैम म्यूचुअल होगा फिर, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या हो रहा था बताओ? नॉन शेयरेबल था उसमें, तो हम यहाँ पे नॉन शेयरेबल की तो बात ही नहीं करी है ना. यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि रिसोर्स 1 जो है वो P2 को भी एलोकेट हो सकता है कुछ एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब P1 छोड़ दे उसे, तो ये नॉन शेयरेबल कहाँ रहा? तो शेयरेबल हो गया ना. तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर P1 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और इन बिटवीन R1 जो है एलोकेट हो गया P2 को, तब ये नॉन शेयरेबल नहीं रहेगा. नॉन शेयरेबल कब होगा? जब तक P1 पूरा कंप्लीट ना हो जाए, R1 कोई और यूज नहीं करेगा. दिस इज लाइक प्रिंटर. अगर मैंने यहाँ से कमांड दी प्रिंटर को, फर्स्ट मैंने कमांड दी, सेकंड किसी और पीसी से कमांड मिली, थर्ड किसी और पीसी से कमांड मिली. सो प्रिंटर कब तक मैं होल्ड करके रखूंगी? जब तक जो मैंने फर्स्ट कमांड दी थी. अब क्या हुआ, जैसे मैंने फर्स्ट कमांड दी, मान लीजिए मैंने कमांड दी है 1101 पे, 1102 पे प्रोसेस 2 ने कमांड दे दी उसे, 1103 पे फिर से प्रोसेस 1 ने कमांड दे दी. तो ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी, जबकि मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, प्रोसेस 1 चल रहा है. तो ये शेयरेबल हो गया मेरा प्रिंटर. ये कब तक कब नॉन शेयरेबल होगा? जब तक मैं पूरा काम ना कंप्लीट कर लूं और P2 से होल्ड करता रहे. तो ना तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन है, ना ये होल्ड एंड वेट की कंडीशन है. इस टाइम पे जो कंडीशन हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, आगे और इसमें फर्दर प्रोसेसेस क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है उनका, वो देख के देन वी विल बी एबल टू डिसाइड कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बन रही है या नहीं बन रही है. नाउ एट दिस स्टेज दिस इज कोई कंडीशन नहीं है, डेडलॉक की कहीं कंडीशन नहीं बन रही इसमें. डेडलॉक तब होगा जब P1 is again waiting for something, P2 is again holding for that particular resource, तब ये डेडलॉक बन जाएगा. Now I was telling about non-preemptive condition. Okay, so what is non-preemptive या no preemptive? This is like any resource which is being held by a process, that process will only release, that process have the right to release this resource. This resource cannot be released forcefully by any other process. जब तक काम खत्म नहीं हो रहा तब तक आप इसे रिलीज नहीं कर रहे, आपने इसे पकड़ा हुआ है. दिस इज लाइक आपका सिस्टम हैंग हो गया है और आपने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरा सिस्टम मान लीजिए हैंग हो गया, चल नहीं रहा, मैं दबाती हूँ ऑल्ट शिफ्ट एंटर. क्या खोलता है ये? क्या खोलता है?
टास्क बार किसी ने नहीं खोला क्या? कंट्रोल और डिलीट होगा। एंड टास्क करने के लिए आता है मैम। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, हाँ भाई सॉरी, ऑल्ट शिफ्ट कर दिया मैंने। टास्क बार, अब आप क्या कर रहे हो, टास्क बार में आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिखाई दे रहे हैं जो सीपीयू को एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के प्रोसेसेस दिख रहे हैं, फ्रंट एंड के प्रोसेसेस दिख रहे हैं, एप्लीकेशंस दिख रहे हैं। आप क्या करते हैं, रैंडमली जो भी हैवी एप्लीकेशन आपको दिखी है, जिसका भी नाम आप जानते हैं, आप काम कर रहे हैं, आप उसको बंद कर देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्सफुली उसे बंद कर पा रहे हैं, उस रिसोर्स को रिलीज करवा पा रहे हैं, तभी तो आपका प्रोसेस रुक गया। अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आप ये काम ना कर पाए, तब उस केस में क्या होगा, डेडलॉक बना रहेगा। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ डेडलॉक, कि नो प्रीएम्प्टिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यू कैन इजीली फोर्सफुली एब्रप्ट द प्रोसेस इन बिटवीन इफ यू वांट, अगर कंडीशन ऐसी आ रही है तो। The last one and the fourth one is your circular wait. What is circular wait? ये तो नाम से ही पता चल जाता है। मैम जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोसेस वो परफॉर्म नहीं करेगा। बिल्कुल, जो मैंने अभी इससे पहले डायग्राम बनाया था वो यही था सर्कुलर वेट का। One process is holding another resource is allocated to another process. मैम फिर सर्कुलर में म्यूचुअल में क्या डिफरेंस है? दोनों के काम एक ही कर रहे हैं। किसका, सर्कुलर और म्यूचुअल में मैम? नहीं, दोबारा बोलो, वर्ड क्या बोल रहे हो? सर्कुलर और म्यूचुअल में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर और म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या डिफरेंस है? दोनों तो काम एक ही कर रहे हैं। नहीं, आपको मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो बता रही हूँ वो मैं आपको मेथड बता रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को अगर होल्ड किए हुए है तो वो रिसोर्स नॉन शेयरेबल है, बस वो इतना बोल रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि ये कहीं और एलोकेट है या कुछ और है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं P1 to R1 कि R1 कर रहा है और इसमें टास्क परफॉर्म कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ये डिफरेंस है। अगर उसने होल्ड किया हुआ है, इसका मतलब कि उसको इस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तभी होल्ड किया हुआ है ना। अब हमें नहीं पता कि प्रोसेस P1 के पास में किस तरह का काम है कि बीच में हो सकता है उसे किसी और रिसोर्स को भी रिक्वेस्ट करनी पड़े, बट ये नॉन शेयरेबल है। दिस इज लाइक जो मैंने अभी आपको प्रिंटर का एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए मैंने प्रिंटर को कमांड दी एक टाइम पे और मैं रुक गई, अब मैं क्या कर रही हूँ, किसी दूसरे प्रिंटर से कलर्ड प्रिंट आउट निकाल रही हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, होल्ड सिर्फ उस टाइम के लिए किया था। हाँ, यूजर ना होल्ड कर रहा है ना, हाँ तो होल्ड नहीं हो रहा है ना बच्चे, प्रोसेस तो यूजर ही क्रिएट कर रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे जब भी हम किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम मोस्टली रेफर कर रहे हैं वो प्रोसेसेस जो यूजर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अगर बैकएंड का कोई प्रोसेस है, इट कुड बी पॉसिबल कि बैकएंड के भी प्रोसेसेस हैं जो आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कोई पोर्ट नंबर यूज हो रहा है, कहीं कुछ और यूज हो रहा है जिसमें आप उसे यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं वो यूजर प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, दैट वी आर होल्डिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज। सर्कुलर वेट क्या कंडीशन कह रही थी जब हम बात कर रहे थे, दैट 2 or more processes form a circular chain. So what is chain here? Where each process waits and wants to acquire the resource which the next process in the chain holds. So that is R1 is allocated to P1, P1 is wanting R2, R2 is allocated to P2, P2 is requesting R1. So ये circular wait है कि आप एक कंडीशन में फंस चुके हैं, अब आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। So these are the 4 conditions that could create the deadlock. Okay, अब इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहली चीज आती है हमारी deadlock detection. How you are able to detect the deadlock? बताइए। देखिए,
सबसे पहला होता है कि अगर आपके पास में कोई सिंगल इंस्टेंस है, बहुत आसान है। सिंगल इंस्टेंस का मतलब आपके पास एक प्रोसेस है, एक दो ही, मतलब एक दो प्रोसेस है, ज्यादा कुछ इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। आप आराम से देख के समझ के बना सकते हैं। 3-4 प्रोसेस रन हो रहे हैं, समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा प्रोसेस कौन से पर्टिकुलर रिसोर्स के साथ कंबाइंड है। तो सिंगल इंस्टेंस के केस में आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ में क्या होता है, आप नॉर्मल एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रोसेस लिया P1, P2, P3, रिसोर्सेज देखे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ एलोकेटेड है, और मैं ग्राफ बनाऊं कि अच्छा प्रोसेस P1 जो है वो रिसोर्स 1 को यूज कर रहा है, प्रोसेस P2 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए और R2 को होल्ड किए हुए है, प्रोसेस P3 जो है वो R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है और R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रोसेस P1 जो है वो रिक्वेस्ट भेज रखी है उसने R2 को। तो कुछ इस तरह का डायग्राम जिसे आप इजीली बना पाए सिंगल इंस्टेंस में, कि एक इंस्टेंस का ही है, ज्यादा इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं हो रहे हैं। तो रिसोर्सेस हमारे सिंगल इंस्टेंस के काम कर रहे हैं। जब हमारे रिसोर्स मल्टीपल इंस्टेंस में होते हैं, जब मल्टीपल इंस्टेंस में हमारे रिसोर्स होते हैं, तब हम इसमें एल्गोरिदम यूज करते हैं। ठीक है, अब एल्गोरिदम कौन सी यूज हो रही है, कोई बता सकता है? मैम इंस्टेंस मतलब? इंस्टेंस होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कोई एक मैंने लिमिट ले ली कि हाँ ठीक है इतने सेकंड तक का है। मैम फिर मल्टीपल इंस्टेंस के लिए वेट फॉर ग्राफ कैसा होगा? उसके लिए वेट फॉर ग्राफ नहीं होता, तभी तो बता रहे। सिंगल इंस्टेंस में ही आप वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे क्योंकि वो आप इजीली बना सकते हैं। मल्टीपल इंस्टेंस के लिए आपको एल्गोरिदम चाहिए। सो डेडलॉक डिटेक्शन की कौन सी एल्गोरिदम हम यूज करते हैं? एक नाम सुना होगा आपने, क्या बात है? मैम ये तो अवॉइडेंस वाली होती है ना? हाँ अभी बता रही हूँ, 1 मिनट होल्ड रखना है। हेलो, या 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी सर। मैं करती हूँ सर, मैं बस ओपन ही कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। हाँ आप रिज्वाइन कर लीजिए। ओके।
हाँ अब देखिएगा सर, मैंने कर दिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक। यस, ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज बैंकर्स एल्गोरिदम, बिल्कुल ठीक बोला, ये अवॉइडेंस की एल्गोरिदम है, बट इसी का ही एक दूसरा वर्जन है जिसे हमने कहा है सेफ एल्गोरिदम, जिसे हम डिटेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, सो आप उसे बैंकर नाम नहीं दे रहे, बट दैट इज काइंड ऑफ एन एल्गोरिदम विच इज सिमिलर टू बैंकर्स एल्गोरिदम, क्योंकि वो उसी से डिराइव्ड वर्जन आप कह सकते हैं। इसमें 3 स्टेट्स की हम बात करते हैं। एक तो होता है, हम डिटेक्शन की बात कर रहे हैं इस टाइम, डू रिमेम्बर कि हम डेडलॉक को डिटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया अवेलेबल, दूसरा पॉइंट हो गया एलोकेशन, और तीसरा पॉइंट हो गया रिक्वेस्ट। तो जब मैं इन 3 पॉइंट्स की बात कर रही हूं, तो 3 पॉइंट्स मेरे डिफाइन कर रहे हैं किसको, आपके रिसोर्सेस को। सो अवेलेबल रिसोर्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, और किस टाइप के हैं वो। एलोकेशन, आप मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो कितने रिसोर्सेस एलोकेट हो चुके हैं उन प्रोसेसेस को, राइट। कॉलम्स जो है, आपने रोज एंड कॉलम्स बनाए, तो कॉलम्स रिप्रेजेंट द रोज, कॉलम रिप्रेजेंट द रिसोर्सेस एंड द रिसोर्सेस विल रिप्रेजेंट द प्रोसेसेस, एंड certain rows जो आपने corresponding rows बनाई हैं, that will be your number of resources कि उस particular, okay, let me share it again. So क्या बोल रही थी मैं कि आप जो है, आप यूज जो कर रहे हो, बेसिकली एक एल्गोरिदम क्रिएट कर रहे हो, सॉरी, एल्गोरिदम में 3 चीजें आप ले रहे हो, अवेलेबल दैट इज रिसोर्स अवेलेबल, एलोकेशन जिसके लिए आप मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, जिसमें आपको कॉलम्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्स। ठीक है, कि आपके रिसोर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, और इसमें जो मैट्रिक्स में यहाँ डिफाइन हो रहे हैं हर एक कॉलम में कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस P1 P2 P3 कौन कौन से कितने कितने रिसोर्सेज उन्होंने होल्ड किए हुए हैं। तो तीसरा आता है इसके अंदर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या कहता है कि हर एक प्रोसेस ने कितनी रिक्वेस्ट आगे भेजी हुई है। एक तो हो गया होल्ड, किसी रिसोर्स को होल्ड करना, और एक हो गया किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करना। तो हम ये 3 चीजें एल्गोरिदम में लेके चलते हैं। आप चाहें तो इस एल्गोरिदम को मैं शेयर कर सकती हूँ डॉक्यूमेंट आपके साथ में, तो आप एल्गोरिदम पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इतना ज्यादा डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट कि इंटरव्यू में आपसे पूछी जाए, बट डेडलॉक अवॉइडेंस जो कि बैंकर्स एल्गोरिदम है, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन, तो उसको हम देखेंगे। मैम नाम क्या एल्गोरिदम का? इस एल्गोरिदम का कोई नाम नहीं है वैसे, बट सेफ एल्गोरिदम इसे बोलते हैं। आप इसे नॉर्मल डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम ही बोलेंगे, ऐसे बैंकर्स एल्गोरिदम या ऐसा कुछ नाम नहीं रखा है, बट द एल्गोरिदम इज वेरी मच सिमिलर टू बैंकर्स एल्गोरिदम। सो कई बार कई जगह आपको हो सकता है ये डायरेक्ट बैंकर्स एल्गोरिदम भी लिख के मिल जाए, but don't go for that because pure bankers algorithm is being used for only deadlock avoidance, not for detection, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज हमारे बैंकर्स एल्गोरिदम में इस तरह से नहीं है, उनका काम अलग है। अदरवाइज आप सेफ एल्गोरिदम बोल सकते हो, सेफ एल्गोरिदम भी यूज किया जाता है टर्म,
सेफ्टी एल्गोरिदम, सेफ एल्गोरिदम, व्हाटएवर। ओके, नाउ बात करते हैं अब, ये तो हमारा हो गया डिटेक्शन के दो पार्ट्स, सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस के लिए। ठीक, डेडलॉक हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की। सो व्हाट इज अवॉइडेंस, या अवॉइडेंस से पहले, हाँ मैम डेडलॉक रिकवरी मेथड क्या होता है? डेडलॉक क्या बोला? डेडलॉक रिकवरी मेथड। डेडलॉक रिकवरी मेथड, हाँ मैम। क्या इसमें क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे? मैम वही रिकवरी मेथड होता क्या है, वो पूछना चाह रहा हूँ। डेडलॉक रिकवरी कैसे हाँ। रिकवर की, हाँ तो मैं वही बता रही हूँ ना, जब मैंने आपको क्या बताया, जब हम म्यूचुअल एक्सक्लूड सॉरी नो प्रियम्पशन की बात कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे हो नो प्रियम्पशन के अंदर, आपके पास में प्रोसेस है, प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को हेल्ड किया हुआ है और उसको आप फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहे हो। तो जब आप रिकवर करते हो किसी एक प्रोसेस को, रिकवरी में प्रोसेस टर्मिनेशन यूज होता है, तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, किल कर रहे हो उस प्रोसेस को। जिसको किल मेथड बोलते हैं। हाँ, किल मेथड आप उसे कह सकते हो। और रिसोर्स प्रियम्पशन, जो मैंने आपको बताया प्रियम्पशन वर्ड, जिसमें आप एलिमिनेट कर रहे हो डेडलॉक को यूजिंग द रिसोर्स प्रियम्पशन मेथड। ठीक, तो ये हमारे रिकवरी के लिए हो गए। तो यही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर डेडलॉक आपको डिटेक्ट हो रहा है कहीं पे, आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम को स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वेटिंग में ही रह जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की। हम डिटेक्ट कर चुके हैं कि हमें पता चल गया कि मेरे पास में डेडलॉक कहाँ आया, कैसे आया, कंडीशंस मुझे पता चल गई। अब मुझे अवॉइड भी तो करना है ताकि आगे कभी ना हो। तो मैं अवॉइड कैसे करूंगी? देखो, डेडलॉक प्रिवेंशन जो है, डेडलॉक प्रिवेंशन आपका यूटिलाइजेशन जो है आपके सीपीयू का, उसे रिड्यूस कर देता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिवेंट करते ही रह जाते हैं, अच्छा ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, अदरवाइज डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। तो हम यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर पाते अपने सीपीयू को। अब अवॉइड करने के लिए डेडलॉक को हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? सबसे पहला हमें चाहिए होता है रिसोर्स का टाइप क्या है, वेदर इट इज शेयरेबल और नॉन शेयरेबल। ये पहले मुझे पता चले कि एक प्रोसेस वो किस तरह के रिसोर्स को हेल्ड किए हुए है, शेयरेबल है, नॉन शेयरेबल है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें क्या चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मुझे चाहिए, कि मेरे जो भी रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से एलोकेटेड हैं, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। थर्ड वन, अब मल्टीपल इंस्टेंसेस ना क्रिएट हो, क्योंकि ये तो सिंगल इंस्टेंस में आप देख के बता सकते हो। मल्टीपल इंस्टेंसेस के अंदर मेरा डेडलॉक ना क्रिएट हो, उसके लिए मैं यूज करूंगी बैंकर्स एल्गोरिथम। ये तीन चीजें मुझे ध्यान रखनी है अवॉइडेंस के अंदर। ठीक, कि ये चीजें मेरी जो है वो अकर ना हो। तो दो तो मुझे समझ में आ गई, दो में कुछ ऐसा खास है भी नहीं, शेयरेबल एंड नॉन शेयरेबल है। एंड देन द थर्ड वन इज बैंकर्स एल्गोरिथम, जो मुझे पढ़ना है। सो व्हाट इज बैंकर्स एल्गोरिथम हियर? क्या है, क्यों आया इसका नाम बैंकर? सबसे पहला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, बैंक्स में ये बड़ी दिक्कत होती थी कि आप एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, आपको एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट पर्टिकुलर रिसोर्स इज बीइंग होल्ड बाय अनदर प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स व्हिच इज बीइंग होल्ड बाय अनदर प्रोसेस एंड सो ऑन। बैंक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, तो इस वजह से इस एल्गोरिथम का नाम ही बैंकर्स एल्गोरिथम रख दिया, बैंकिंग सिस्टम्स की वजह से। सो हो क्या रहा है, मान लीजिए कोई एक प्रोसेस P1 एंटर करा, इसने बताया कि मुझे
मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, P1 में। अब क्या करेगा सिस्टम, जब P1 प्रोसेस आ रहा है वो बता रहा है मुझे इतना नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए मैक्सिमम, ठीक। सिस्टम देखेगा कि जो इसे रिसोर्सेज ये चाहिए, the system will look at those resources and check if allocation of that resources to P1 process will leave the state into a safe one, or you can say the safe state. What is safe state? Safe state, it means that the system can allocate all the resources requested by the process without entering a deadlock state. इसका मतलब ये है। तो P1 सबसे पहले आपको ये बता रहा है आके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है। सिस्टम विल चेक दैट दोज रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड इजीली और नॉट। हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रह सकता है या नहीं रह सकता। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, P1 विल वेट। हम P1 को कहेंगे कि दैट यू हैव टू वेट until the other processes would release some of their resources. So this is the very basic idea behind the Banker's algorithm. आप कभी Banker's algorithm पढ़ें तो आप उसमें ये देखना कि यही आइडिया जो है वो यूज हो रहा है इसके अंदर। आप इम्प्लीमेंट आप इसे कैसे करते हो Banker's algorithm को, यहाँ पे आप 4 डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हो। कौन कौन से? सबसे पहला हम यहाँ लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे n जो है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द सिस्टम, कि हमारे इतने प्रोसेसेस वर्क करेंगे। m हम लेके चलते हैं इसमें नंबर ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक। अब इसमें स्टेट्स आती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सबसे पहली अवेलेबल स्टेट्स हैं, ठीक। अवेलेबल क्या है, आप यहाँ पे जो भी m लेके चल रहे हैं रिसोर्सेज, ऑब्वियसली एरे में होंगे वो, तो वो क्या होंगे, आप उसे एरे में रखेंगे। कोई साइज रहेगा नंबर ऑफ रिसोर्सेज पे। मान लीजिए मेरे 10 रिसोर्स हैं तो मेरा एरे बन जाएगा 1 से लेके 10 तक का, कि ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं मेरे। जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं आपको, आप उसे कैसे भी दिखा सकते हैं, आई के फॉर्म में या जैसे भी आपको दिखाना है। आप एल्गोरिदम देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बड़े आराम से। देन उसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है विच इज योर मैक्सिमम। व्हाट इज मैक्सिमम? दैट मैक्सिमम यानी कि हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने रिसोर्स को होल्ड कर सकता है, दैट इज द मैक्सिमम हियर। तो आप यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे, 2D एरे, विच विल बी सेइंग दैट जो भी आपका प्रोसेस है वो कितने आपके क्या यूज कर रहा है, रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक प्रोसेस की डिमांड कितनी है, क्या डिमांड कर रहा है वो हमारे साथ, कि उसे कितने हमारे एक टाइम पे रिसोर्सेज चाहिए। 1 मिनट। हाँ जी सर। सर मैंने तो आपको प्रेजेंटर बना रखा है, उसमें कैसे हो गया? पता नहीं मैम, ये यहाँ मैं करती हूँ, रुकिए।
मैम हेलो। हाँ मैम, मैं कह रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ मिलेगी हमें? आई थिंक सर यूट्यूब पे डाल रहे हैं शायद इसको। आज की अपलोड कर देंगे सर आज तक? हाँ आई थिंक कर देंगे, मैं बोल दूंगी एक बार उन्हें, ठीक है। ओके मैम, क्योंकि हम थोड़ा सा ना 10 मिनट का ना मेरा ना कनेक्शन लूज हो गया, तो लेक्चर थोड़ा सा रह गया। अच्छा अच्छा। एंड डू मेक श्योर कि आप लोग सभी जो है एटलीस्ट एप्टीट्यूड और ये इंग्लिश वाली क्लासेस अटेंड करें, वर्बल एबिलिटी, बिकॉज ये तो सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, आप पढ़ चुके हैं, आपको आइडियाज होंगे इनके, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट योर रीजनिंग एंड अदर थिंग्स। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रैब इट। फाइन। हाँ, मैम 3:30 से जो लेक्चर होगा वो राजेश सर लेंगे, कौन लेगा? आज अगर वर्बल का है तो फिर पिनाकी मैम लेंगी, अदरवाइज अगर वो दूसरा है रीजनिंग लॉजिकल एबिलिटी है तो राजेश से लेंगे, क्योंकि वर्बल आपका बीच में होना जरूरी है ना। चलिए, क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, मैं बात कर रही थी डेडलॉक की। उसमें बैंकर्स एल्गोरिदम की हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया मैक्सिमम दैट एवरी प्रोसेस should give this information that what is the demand of for the resources, how many resources can be allocated to each process. So यहाँ पे हम जो है ये चीज in a form of a array बनाएंगे। आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे k(i, j) जैसे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट ईच एंड एवरी प्रोसेस की आपके पास में इंफॉर्मेशन होगी। ये तो हो गई मैक्सिमम की बात कि ठीक है मुझे मैक्सिमम इतना चाहिए, बट देयर इज अनदर टर्म नीड और आता है बैंकर्स में। कितना मुझे चाहिए मतलब मैक्सिमम, और एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है। सो देयर इज अनदर अगेन 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी इसमें, ठीक है। तो आप इसमें क्या बताएंगे, जो भी रिमेनिंग रिसोर्सेज हमारे पास में बचे वो किस तरह के प्रोसेसेस को रिक्वायर्ड हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, कोई मैंने एरे बनाई है नीड i, j, इट मींस ith is the process that needs k instance of jth resource, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई एक ith प्रोसेस है जिसे उसका किसी jth रिसोर्स का k इंस्टेंस चाहिए, मतलब वो उतना पर्टिकुलर टाइम उसको चाहिए उस jth रिसोर्स का। इंस्टेंस इज द टाइम, बेसिकली टाइम पीरियड। सो कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर मैं कहूँ नीड i, j, यू हैव टू कैलकुलेट, तो कैसे कर लोगे? That will be calculated only when you know the maximum of i, j minus allocation of i, j। अगर ये चीज लाइन समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताना, अदरवाइज बहुत ही इजी लाइन है कि मुझे नीड किसकी है वो मैं कैसे निकालूंगी, मैक्सिमम में से कितने एलोकेट हो गए, तभी तो बचा हुआ आएगा। और क्या उस बचे हुए में से मेरे पास में मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, तभी मुझे पता चल पाएंगे। सो ये तीन टर्म्स जो है, ये तीन टर्म्स मेरी यूज होती हैं किसके अंदर? बैंकर्स एल्गोरिदम के अंदर, ठीक। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं कहूँ कि आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, तो बिग O ऑफ m into n स्क्वायर या बिग O ऑफ n स्क्वायर m, जैसे भी आप लिखना चाहें। अब बात करते हैं, इसके अंदर हमने बैंकर्स एल्गोरिदम देख ली। चलो अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और जो हमारी 2 से 3 की क्लास होगी उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन में आई विल सी कि आज के टॉपिक क्या रखना चाहिए, कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इम्प्लीमेंट कराया जाए, बिकॉज पेजिंग अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, शेड्यूलिंग अभी स्टार्ट नहीं की है,
तो लेट्स सी कि हम इम्प्लीमेंटेशन में या तो थ्योरी कवर कर लें, जैसे भी होता है शेड्यूलिंग कवर कर लेंगे, ज़्यादा आसान है, ताकि हमारे पास में ज़्यादा टाइम रहेगा फिर इम्प्लीमेंटेशन का नेक्स्ट क्लास मैम में। इसमें बैंकर एल्गोरिथम याद भी करनी होगी? नहीं, इंटरव्यू में देखो याद नहीं करनी होती। अगर वो आपसे ये पूछ लें कि जी बताइए व्हाट इज बैंकर, हाउ यू विल अवॉइड द डेडलॉक, तो आप बोलोगे वी कैन अवॉइड द डेडलॉक बाय बैंकर्स एल्गोरिथम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड अराइज कि व्हाट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसमें चीजें क्या चाहिए, कि ओके सर देयर इज 4 major points into Banker algorithm. The first one would be your what are the number of processes, how many processes would be going to be executed, how many number of resources that would be need by each and every process, then what is the availability of the processes, then what would be the maximum limit of the processes that can be held by the resources, then what is the need of the processes, and the need of the processes could be calculated by subtracting the maximum to the allocation। जो भी मैट्रिक्स बन रही है वो इतना समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को आइडिया है कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है। हाँ मैम, तो हमको एक एलोकेशन मैट्रिक्स भी बनानी पड़ेगी ना? हाँ मैंने अभी बताया ना आपको यहाँ पे एलोकेशन मैट्रिक्स का कैसे, वो यहाँ बताया था उसमें। अच्छा पहले वाले में हाँ, हाँ पहले 4 मैट्रिक्स बनेंगी ना? 4 मैट्रिक्स बनेंगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अवेलेबल मैट्रिक्स बनेगी दैट इज ऑफ 1D, 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स रहेगी। मैक्सिमम इज योर 2D, नीड इज योर 2D, एलोकेशन इज योर 2D। ये आपको चाहिए डेटा, ये 4 चीजें आपको चाहिए। मैंने वही 4 डेटा स्ट्रक्चर बात की थी यहाँ पे शुरू में। तो ये आपको डेटा चाहिए और आप इस तरह से नॉर्मली बना सकते हो और अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे डेडलॉक बन सकता है, क्योंकि अब हम अवॉइडेंस की बात कर रहे हैं, अब हम डिटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो लास्ट क्लास में 2 से 3 वी विल सी की थ्योरी करते हैं, आज काम करते हैं शेड्यूलिंग खत्म कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम पेजिंग पे आएंगे। ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस।